Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is a third lecture of Unit 3 of Quantity Estimation and Construction Management subject. Okay. Now, this is lecture we will understand about the different type of methods of the project management. We understood about the Gantt chart or the bar chart in the previous lecture. Now, we will understand about the remaining methods in this lecture. हमने प्रीवियस लेक्चर में बार चार्ट के बारे में जाना था, उसमें जो एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे उसके बारे में जाना था. नाउ द एडवांटेजेस इज द राइट थिंग, एडवांटेज सही बात है, बट डिसएडवांटेज नहीं होने चाहिए. तो डिसएडवांटेजेस को हम रिमूव करेंगे. तो हर मेथड में एक एक डिसएडवांटेज या मल्टीपल डिसएडवांटेज को रिमूव किया गया है. तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आएगा, जो मेथड आएगा जिसमें सारे डिसएडवांटेज नहीं होंगे, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, देन वी विल फॉलो दिस टाइप ऑफ मेथड फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ बिग स्ट्रक्चर और द एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. Now the second method of the project management is a milestone chart. What is the milestone? Okay. First disadvantage of the bar chart is we cannot identify the sub activities of the particular activity in a bar chart. ठीक है, बार चार्ट में हमको ये नहीं समझ में आता था कि पहले ही कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ हैं, और सब एक्टिविटीज़ के अंदर भी हो सकता है बहुत सारी सब एक्टिविटीज़ हो. तो उन सब एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके स्टार्टिंग टाइम क्या है, उनका कंप्लीशन टाइम क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, वो हम नहीं बता सकते थे. बट with the help of this milestone chart we will understand, we can tell about the sub activities of the particular activity. Okay. So what is the mile chart? Okay, the mile chart is a improvement to the bar chart. What is the improvement? We can draw or we can tell about the sub activities. In this milestone chart, in each activity there are some key event which denotes the completion of the certain portion of the activity, which is called as a sub activities. Okay, sub activities. These key events are called the milestone. Okay, milestone may be represented by an arrow. We can represent or draw the milestone by an arrow. Now, each milestone can be considered as a specific event along main event. It means in the main event there are many sub events which we can understand by this milestone. What is the milestone? It is an arrow, simple arrow. We will see with an image or drawing. With the help of milestone, in number of activities are broken down into several activities. We can identify the starting and the ending of these सब एक्टिविटीज़. हमने जो कहा था सब एक्टिविटीज़ के बारे में वो बात आ गई कि हम इस माइलस्टोन की मदद से जो एक्टिविटीज़ के अंदर सब एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द सब एक्टिविटीज़, हाउ मेनी सब एक्टिविटीज़ present in an activity, what is the starting time of the sub activity, particular sub activity, what is the completion time of the particular activity, and what is the duration of the particular sub activity. Okay. Now this is the milestone chart. समझ रहे हैं. सिंपल तरीके से अगर हम दीज एक्टिविटीज़ को इसको हम हटा देते हैं, इन दीज एरो देख रहे हैं आपको लाल कलर के रेड कलर के, इनको हटा दें तो ये बार चार्ट बन जाएगा. इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, दिस सेकंड एक्टिविटी, दिस इज द थर्ड एक्टिविटी, यू कैन से. बट these milestone or we can say these arrows is called as a milestone. जी हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी सब एक्टिविटीज़ हैं एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द सब एक्टिविटी, व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द सब एक्टिविटी. ओके, these are called as milestone. Okay, so अब पहली एक्टिविटी हम क्या कह सकते हैं, इसको देख के कह सकते हैं कि इन दिस एक्टिविटी देयर आर टू सब एक्टिविटीज़. द फर्स्ट सब एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड कंप्लीट एट हेयर. द सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सेकेंड सब एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड कंप्लीट एट दिस. And what is the completion time of the sub activities? We draw a vertical line to cut an horizontal line or time axis, and the duration of the length of a sub activity is called as a duration of this sub activity of the first activity. This is the duration. So this is the time duration of this sub activity. Okay, and as also
Same as we can say in this activity there are 3 sub activity. First activity we start from here and complete at here. The second sub activity start from here and complete at here, and third activity start from here and third activity. ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें कितनी सब एक्टिविटीज़ हैं. इट मीन्स इन दिस मैटर वी रिमूव द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द बार चार्ट. ओके, तो हम एक डिसएडवांटेज हटा लिया, बट उसके अलावा इसमें हम ये नहीं बता सकते कि इस मेथड मीन्स इस एक्टिविटी और इस एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है. ओके, वी कैन नॉट से अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज. वी कैन से अबाउट द सब एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, बट वी कैन नॉट से अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज. ओके, दिस आर डिसएडवांटेज. मतलब इसमें भी डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें भी कमियां हैं. ठीक है, इसमें लेकिन एक कमी दूर हो गई माइलस्टोन की मदद से, दूसरी कमी दूर नहीं हुई है, तो इसको हम माइलस्टोन लिख देते हैं. तो माइलस्टोन बार के बारे में, माइलस्टोन चार्ट के बारे में हमने समझ लिया. व्हाट इज द माइलस्टोन चार्ट? माइलस्टोन चार्ट में बेसिकली हम किसी भी एक्टिविटीज में सब एक्टिविटीज बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइलस्टोन. व्हाट इज द माइलस्टोन? दिस एरो, रेड एरो इज कॉल्ड एज अ माइलस्टोन. These denotes the sub activities of the particular activity. Now the limitations, we discussed about the limitations earlier. हमने अभी बात की थी कि क्या डिसएडवांटेज है या लिमिटेशंस है. तो इंटर रिलेशनशिप या इंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट, वी कैन नॉट से अबाउट द इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट. हम नहीं बता सकते कि पहली एक्टिविटी, हम ये नहीं बता सकते कि देखो इसमें समझाते हैं. हम इस बार चार्ट में देखो, हम प्रीवियस उससे समझाते हैं, प्रीवियस स्लाइड इसे समझते हैं कि इन बार चार्ट, इस माइलस्टोन चार्ट को हम देख के ये बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज द सब एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज द सेकंड सब एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी. ओके, दिस इज सेकंड एक्टिविटी और अनदर एक्टिविटी, दिस इज द सब एक्टिविटी, दिस इज सब एक्टिविटी, दिस इज सब एक्टिविटी. बट वी कैन नॉट से अबाउट द दीज 3 एक्टिविटीज आर द सीरियल एक्टिविटीज और पैरेलल एक्टिविटी. इट मीन्स ये एक्टिविटी एक साथ चल सकती हैं या कंप्लीशन ऑफ द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी विल स्टार्ट, कि पहले एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद हम दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, है हम नहीं बोल सकते हैं. दिस इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ द माइलस्टोन चार्ट. व्हाट we cannot determine, we cannot say about the interrelationship or interdependency between the activities of the project. Okay, ये डिसएडवांटेज हम नहीं बता सकते. what is the interdependency. Now the third method of the project management is linked bar chart. Okay, हमने इंटरडिपेंडेंसी की बात की. अब ये इंटरडिपेंडेंसी की जो लैकिंग थी या डिसएडवांटेज था वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया. किसमें? लिंक्ड बार चार्ट. व्हाट इज द लिंक्ड बार चार्ट? इसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ को लिंक कर दिया उसमें एक एरो की मदद से. इससे ये बोल दिया कि एरो जहाँ पर डोनेट करता है, एरो मीन्स अगर एरो पहले एक्टिविटी के एंड, जैसे तुम देते हैं, अगर एरो हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी वी विल स्टार्ट द सेकेंड एक्टिविटी, तभी कर सकते हैं. बट द एरो हमारा मतलब ऐसा ही चल रहा है या साथ में चल रहा है, इसमें कोई एरो नहीं है. इसका मतलब है कि दीज बोथ एक्टिविटी वी कैन स्टार्ट द पैरेलल, वी कैन हम दोनों एक्टिविटी को साथ साथ चला सकते हैं. इट मीन्स दैट इन दिस बार या दिस लिंक बार चार्ट, ये हमको बताता है. ना समझते हैं. लिंक बार चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द बोथ ऑफ द चार्ट, गैंट चार्ट एंड द माइलस्टोन चार्ट. दोनों का इम्प्रूवमेंट है. पहले दोनों का इम्प्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि पहले वाले चार्ट से हमने माइलस्टोन की कमी को दूर किया और दूसरी मतलब सब एक्टिविटीज़ की कमी को हटाया, और दूसरी माइलस्टोन चार्ट से इंटरडिपेंडेंसी को हटा दिया, इंटर रिलेशनशिप को हटा दिया बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट. हमने ये दोनों चीज़ों को हटा दिया, इसमें लिंक्ड कर दिया एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से. In this chart, activities are linked with an arrow and lines which denotes the sequence or order of the preceding activity. हम इससे ये बता सकते हैं कि पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है, दूसरी कौन सी एक्टिविटी हो रही है. But with the help of Gantt chart or bar chart and milestone chart, we cannot determine, we cannot say about the what is the first activity, what is the second activity.
we can roughly say, but we cannot say about the serial activity and the parallel activities also. Okay. In the preceding activity denotes one activity must be completed before the another activity start. मतलब इस मेथड या इस लिंक बार चार्ट से हम ये बता सकते हैं कि पहली एक्टिविटी जब खत्म होगी, ठीक है, तब दूसरी एक्टिविटी खत्म होगी. कैसे? जब लिंक एक बार होगा. हम समझते हैं. ओके, दिस इज द लिंक बार चार्ट. व्हाट इज दिस, क्या है? ओके, इसका मतलब है कि दीज बोथ एक्टिविटीज आर पैरेलल एक्टिविटीज बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओरिजिन. दोनों एक्टिविटी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही हैं, यहीं से स्टार्ट हो रही हैं. बट द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दिस एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दिस. उसको कोई मतलब नहीं है. हमको ये बताना है कि एक दूसरे एक्टिविटी से इंटर रिलेशनशिप बताना है कि पहली कौन सी एक्टिविटी खत्म हो रही है, देन उसके बाद कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है कि पैरेलल हो रही है. तो इसमें हम पहली बात तो बता सकते हैं कि ये दोनों एक्टिविटी ज़्यादा आर नॉट अ सीरियल एक्टिविटी, दीज एक्टिविटी ज़्यादा पैरेलल एक्टिविटी. इट मीन्स ये दोनों एक्टिविटी को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, एक साथ चला सकते हैं. ओके, समझ गए ना. दूसरी चीज़ यानी कि सीरियल एक्टिविटी कैसे. अब दिस इज अ लिंक्ड बार या लिंक्ड और लिंक या एरो. ये बताता है कि ये हमारी एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, देन इसके ख़त्म होने के बाद ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हुई है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि पहली एक्टिविटी ये है, दूसरी एक्टिविटी या कुछ ही बोल दो, ये ख़त्म होने के बाद ये जा रही है. नाउ सेम एज इसके ख़त्म होने के बाद ये आ रही है और इसके ख़त्म होने के बाद ये आ रही है. यानी कि इस लिंक बार चार्ट में हम ये बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रही है, पहले सीरियल एक्टिविटीज़ कौन सी है और पैरेलल एक्टिविटीज़ कौन सी है. हम दोनों एक्टिविटीज़ में हम अंतर बता सकते हैं. ओके, कैसे मदद से? विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक्ड बार चार्ट. ओके, समझ गए हैं. मतलब इसमें कमियां दूर होंगी, लेकिन इसमें और भी कमी है. इसमें कमी है कि इसको हम बड़ी प्रोजेक्ट के लिए, ह्यूज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा क्लम्सी हो जाएगा, बहुत नंबर ऑफ एरोज हो जाएंगे, तो इसको हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते ना. उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम नेटवर्क एनालिसिस करते हैं. व्हाट इज नेटवर्क एनालिसिस? नेटवर्क एनालिसिस इज अ ग्राफिकल मॉडल विच लिस्ट आउट the sequence of the different activities along with the interdependencies which are required for the completion of project. Oh, okay. What is this? इसमें है क्या? इसमें हम एक नेटवर्क बनाते हैं. किस का? इसमें हम नेटवर्क बनाते हैं एक्टिविटीज़ का. ओके, विद द हेल्प ऑफ लाइन्स और ड्राइंग ग्राफ में बनाते हैं, और उसमें हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इंटरडिपेंडेंसीज एंड ड्यूरेशन एंड स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन सारी चीज़ों को बता सकते हैं. अब ये नेटवर्क एनालिसिस है क्या, समझ लिए. अब नेटवर्क एनालिसिस में सारी कमियां, मोस्ट ऑफ द कमियां सारी दूर कर देते हैं, सारी कमी दूर हो जाती हैं. ठीक है, तो नेटवर्क एनालिसिस है ना इम्प्रूवमेंट ओवर द माइलस्टोन चार्ट एंड ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द बार चार्ट आर एलिमिनेटेड. तो सारी लिमिटेशंस हट गई, सारी डिसएडवांटेजेस हट गए. तो बढ़िया, इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते ही हैं. मेनली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस दीज नेटवर्क एनालिसिस विल बी यूज फॉर द शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और वी कैन से द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. Okay, what is the advantage of this network analysis? In this network analysis we can clearly identify the interrelationship between the various activities and events. What are the events? We will understand what are the events. Activities हम समझ के, activity मतलब वर्क, क्या काम हो रहा है, event क्या हम समझेंगे. ओके, तो हम इस मेथड में या इस एनालिसिस में हम ये बता सकते हैं कि एक दूसरे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, ये हम बता सकते हैं, ये हम बताते भी हैं. दिस मेथड can be used for the small as well as big complex project which has a large number of activities. तो ये जो नेटवर्क एनालिसिस है वो यूज भी किया जाता है ह्यूज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में 1000, 2000, 3000, 20,000 बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. उन सारी एक्टिविटीज़ का यूज़ करके, मतलब उन सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं उसमें हम नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करते हैं. दिस मेथड विल बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क एनालिसिस और प्रोजेक्ट. ओके, दिस इज मेथड इज़ वेरी यूजफुल. इस मेथड में रीशेड्यूल भी कर सकते हैं. रीशेड्यूल क्यों करना है? हमको क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड करनी है. इसमें हम क्रिटिकल एक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं और रीशेड्यूल कर सकते हैं. क्यों करना है रीशेड्यूल? ओके, हमको इसलिए करना है कि क्रिटिकल एक्टिविटी के चेंज होने से हम जानते हैं कि टाइम ड्यूरेशन हमारा चेंज होता है, उसके आगे और पीछे वाली एक्टिविटीज़ में असर पड़ता है. हो सकता है कंप्लीशन ऑफ द टाइम में भी, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट में भी असर पड़े. तो अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज़
को चेंज करने में टाइम कंप्लीशन टाइम में असर पड़ रहा है तो उसको कभी करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो इस नेटवर्क एनालिसिस में हम उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको रिशेड्यूल भी कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने जहाँ सही बैठ रहा है, सही टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, उसकी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारे तरीके के रिसोर्स एट अ टाइम मौजूद हों, तो इसीलिए हम एक्टिविटी को रिशेड्यूल करना पड़ता है। तो हम इस नेटवर्क एनालिसिस में रिशेड्यूल कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द कंट्रोलिंग of the activities because it directly indicate the time required between the two milestone और activities। ओके, हम बदल भी सकते हैं, हम मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हमने सारे तरीके की चीज़ समझ ली। इट मीन्स दिस इज़ अ बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट मेथड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसको जनरली यूज़ किया जाता है, बट अब 2 तरीके का होता है। पहला होता है एक्टिविटीज़ ऑन एरोज और एरो डायग्राम, एंड द सेकेंड वन इज एक्टिविटीज़ ऑन नोड और प्रीसिडेंस डायग्राम। अब एक्टिविटीज़ ऑन एरो क्या है कि एक्टिविटीज़ को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरो, दिस इज नोड। व्हाट इज अ नोड? अब हम नोड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नोड क्या होता है? नोड देखो, एक्टिविटीज़ मीन्स द वर्क, मीन्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक वॉल इज एक्टिविटी। ओके, एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिग वर्क द प्लास्टरिंग वर्क विल स्टार्ट, plastering work will start, so that at a point when the completion of the big work and the plastering of starting of the plastering will start। समझो मेरी बात, समझो एक बात समझते हैं कि हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब काम। तो दिस इज एक्टिविटी इज अ ब्रिक वर्क। ओके, एंड जी हमारी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर, दिस इज द एंड। एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज अ प्लास्टरिंग। This is the starting of the plastering, this is the ending of the plastering। Okay, these are the activities, this is the activity, this is another activity, but द टाइम इंस्टेंट, एक समय अंतराल, एक क्षण, एक पल जिस पर हमारा ब्रिक वर्क खत्म हो रहा है और दूसरा प्लास्टरिंग वर्क स्टार्ट हो रहा है, दीज आर द टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड एज अ नोड। वो बीच का समय जिस पे एक चीज़ खत्म हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है, ये हमारा कहलाता है नोड। तो व्हाट इज द एक्टिविटी इज अ पर्टिकुलर वर्क एंड द बीच टाइम इंस्टेंट बिटवीन द एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नोड। ओके, तो फर्स्ट मेथड ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस इज द एक्टिविटीज ऑन एरो, means the activity is denoted as an arrow, and the second method is the activity on node, and it means the activities we will represent the activities as a node। okay, तो जनरली हमारे पास एरो मेथड, एक्टिविटी एंड एरो मेथड यूज किया जाता है। इसी से हम जो मेथड्स होते हैं जैसे CPM पट वाले मेथड होते हैं उसको इसी मेथड से, इस डायग्राम से ही शो करते हैं, इस डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। तो हम इसी को समझेंगे, इसी के बारे में समझेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, now the last project management method is a work breakdown structure। what is the work breakdown structure? okay, this method is used for a very complex structure or big structure, big project और structure। इसमें करते क्या है? इसमें हम करते हैं, इसमें हम एक पूरे प्रोजेक्ट को लेते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेते हैं या बहुत सारी एक्टिविटी को लेते हैं, एक को लेते हैं, देन इस प्रोजेक्ट को हम बहुत सारी सब एक्टिविटीज में पार्ट कर देते हैं। कैसे कि हमने एक एक्टिविटी का एक पूरे प्रोजेक्ट की कुछ एक्टिविटी बनाई,
देन उस एक्टिविटी की सब एक्टिविटी बनाई, देन उस सब एक्टिविटी की भी सब एक्टिविटी बनाई, एंड दिस सब एक्टिविटी की भी सब एक्टिविटी बनाई। इस तरीके एक चार्ट बन जाता है। उस चार्ट को फॉलो करते करते, उस पूरे स्ट्रक्चर को जो फॉलो करता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। वी कैन से अंडरस्टैंड विद द नेम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। हम पूरे वर्क को ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में और स्ट्रक्चर एक तैयार कर लेते हैं। दिस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी विल फॉलो दीज स्टेप्स एंड डू अवर वर्क। ओके, हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं ना। एक बार समझ लेते हैं। इन दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इन ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड वी हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़। हमको सभी एक्टिविटीज़ को तरीके से समझना होता है। सभी एक्टिविटीज़ को कैसे समझेंगे? जब उसको तरीके से हम डिवाइड करेंगे। ओके, इन दिस वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर we have to break the project into different major systems, their subsystems and discrete activities is called as a work down structure। जो हमने ही बताया कि पूरे वर्क को हम पहले एक्टिविटी मेजर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, देन सब सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसके बाद भी डिस्क्रीट एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक्टिविटीज़ की हो सकती है सब एक्टिविटीज़ हों, और सब एक्टिविटीज़ की हो सकती है सब एक्टिविटीज़ हो। मीन्स बहुत सारा एक चार्ट बन जाता है, एक डायग्राम बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल ऑल्सो यूज इन अ कॉम्प्लेक्स इन अ बिग प्रोजेक्ट। समटाइम्स इट इज़ यूज, हम इसको भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसको किया जाता है। In this work breakdown structure, first we have to split project into systems and then subsystem and their component and the element. Okay, these are the name as a structure. पहले हम ब्रेक ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को पहले हम स्प्लिट करते हैं सिस्टम्स में, बहुत सारे सिस्टम्स में। जैसे हमें पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, प्रोजेक्ट करना है किसी हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में हम अलग अलग चीज़ें बांट देंगे कि हमें ब्रिक वर्क करना है पूरा, कंक्रीटिंग वर्क करना है पूरा, रीइंफोर्समेंट वर्क करना है पूरा, इंटीरियर करना है पूरा, वुड वर्क करना है, प्लास्टरिंग करना है एंड द रूफिंग करनी है। इन सारी चीज़ों को हम बांट देंगे किसमें? सिस्टम्स में। ओके, देन उस ब्रिक वर्क का किस क्वालिटी का ब्रिक वर्क करना है, किस जगह पे कौन सी क्वालिटी का करना है, किस जगह पे कौन सी टाइप्स ऑफ ब्रिक यूज हो जाएगी, किस तरह में कौन सा मोटार यूज हो जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। देन सब सिस्टम्स में एंड देयर कंपोनेंट, और फिर हम कितनी ब्रिक्स कहाँ पे लग रही हैं, किस तरह की हाइट विड्थ और ब्रिक वर्क कितना है, उसको बांट देंगे उसके एलिमेंट्स में। एंड द फर्दर डिवीजन हम करते जाएंगे। इस तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर को बांट देते हैं। ये कहलाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विथ एन फिगर। दिस इज फिगर। ओके, हम इससे समझते हैं एक बार और। द फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज ए प्रोजेक्ट। नाउ इस प्रोजेक्ट को हमने सिस्टम्स में डिवाइड की। हमने दो दो दिखाए हैं, लेकिन इसका मतलब दो नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वन, ये सेकंड और थर्ड वन सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, हमने दो दो तरीके समझे। प्रोजेक्ट को सिस्टम में डिवाइड किया, देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स। ओके, in a particular system there are so many और there are number of subsystems also। इसमें भी जरूरी नहीं है कि दो हैं, हम दो बताए हैं, लेकिन there are number of so many subsystems will be present हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होंगे। ये सिस्टम, ये सब सिस्टम एंड अनदर इज ए सब सिस्टम। ओके, एंड इन अ पर्टिकुलर सब सिस्टम देर आर सो मैनी कंपोनेंट्स। ओके, अब इस एक सब सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। हमने जहाँ फिर से दो समझाए हैं, हो सकता है तीन हो, चार हो, पाँच हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो इन अ पर्टिकुलर सब सिस्टम देर आर सो मैनी components will be present. This is the first component, this is the second component, this is the third component. And a particular component there are so many elements will be present। यहाँ पे दो समझाएं, हो सकता है मल्टीपल हो, तो इस कंपोनेंट में एक दो मल्टीपल भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, और ये पूरा भी है नहीं है। इसके अलावा एलिमेंट्स में भी हो सकता है और एक्टिविटीज़ काउंट हो, उन एक्टिविटीज़ में और सब एक्टिविटीज़ हो। ठीक है ना, तो दिस इज द प्रोजेक्ट। जो ऑब्वियस जी बात है, हमको समझ में आ रहा है कि इतने सारे चार्ट बन रहा है, इतना पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये बड़ा प्रोजेक्ट के लिए होगा, छोटे प्रोजेक्ट में हो नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे पार्ट हमारे किसी बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में ही होते हैं। इट इज़ नॉट इन अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट। ओके, हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, हमको बहुत सारा काम करना है किसी स्ट्रक्चर में। दिस इज अ प्रोजेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या काम होते हैं? पहला हो सकता है हमारा ब्रिक वर्क, हमने बांट दिया, कंक्रीटिंग, रीइंफोर्समेंट,
also we can say about the stonework. Okay, these are called as the systems. Okay, and a particular system there are so many subsystems. It means what is the types of brick, ठीक है, what is the क्वालिटी ऑफ टाइप्स हो गया, व्हाट इज द क्वालिटी, क्वालिटी तो टाइप्स में आ जाता है, व्हाट इज द मोटार रेशियो, what are the numbers. Okay, in a particular subsystem which type of brick will be used in a different elements. Okay, तो these are इस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से बांट देते हैं और ये हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स दिख भी रहा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं एक बार तो क्लियरली हम देख सकते हैं ना। हम अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के, या कुछ बातें और समझ लेते हैं। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉलो अप टू बॉटम अप्रोच। हमने देखा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे तक गया। ऊपर से मतलब बड़े प्रोजेक्ट से लेके, बड़े काम से लेके छोटे काम तक जाता है, यानी कि अप टू बॉटम फॉलो करता है। अप टू बॉटम इट मीन्स जो बड़ा काम है, बिग वर्क से लेके स्मॉल वर्क से जाता है, छोटे वर्क से जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अप टू बॉटम अप्रोच। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंटररिलेशनशिप। ओके, इस स्ट्रक्चर से हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें कौन से फंक्शनल एलिमेंट है, यानी कि कौन से काम करने वाले, इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज की यूज होगी, ज़्यादा टाइम की यूज होगी और ज़्यादा चीज़ों की यूज होगी। And we can also say about the interrelationship. It means what are the relationship between the two activities. It means कि हमारा reinforcement start हमारा एक्सकवेशन होने के बाद ही फाउंडेशन डलेगा या कंक्रीटिंग होगी, reinforcement होगी, साथ में नहीं हो सकती, और कौन सी एक्टिविटीज़ पैरेलल चल सकती हैं। तो इस स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि हाँ ये एक्टिविटीज़, ये वाली एक्टिविटी, ये और ये वाली एक्टिविटी पैरेलल हो सकती है, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्टिविटी वी विल स्टार्ट दिस एक्टिविटी। हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। Another advantages of this work breakdown structure is in this network project is split into a different parts, so it is very useful for doing planning and scheduling activity. Okay, हम इस स्ट्रक्चर में, हम इस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तरीके से चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी है। हम देखते हैं अभी इसमें बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमारी, ये ब्रिक वर्क था, ये रीइंफोर्समेंट था, ये हमारा कंक्रीटिंग था, दिस इज वी कैन से दिस इज अ लाइटनिंग वर्क और इलेक्ट्रिफिकेशन बिकॉज से। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि अगर हमें किसी एक्टिविटी को रीशेड्यूल करना है, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड, कोई एक्टिविटी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है तो हमें उसको रीशेड्यूल करना है कि इस एक्टिविटी को यहाँ नहीं यहाँ लगाना है, तो उस स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं। इट मीन्स with the help of this structure we can reschedule our activities and doing our planning for the helpful of the project or the completion of the project हमको करने के लिए कर सकते हैं। इट मीन्स हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बारे में समझा। तो इस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाना। पहला था माइलस्टोन चार्ट, अनदर वन इज linked bar chart, another one is network analysis. There are two types of network analysis. First is activity on arrow, second is activity on node, and last method of the project management or method of scheduling is वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने सभी के बारे में जाना, और मेजरली दो तरीके के नेटवर्क एनालिसिस एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम जनरली यूज करते हैं ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। तो आज की क्लास में हमने सारे नेटवर्क एनालिसिस के बारे में जाना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेटवर्क्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो आज की क्लास में इतने रखते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर सीइंग, थैंक यू।